time. Welcome everyone. Can we do a quick round of introductions? I can go in first. So my name is Aisha Chaudhary. I'm one of the directors at tutorbees.net, and we have our TutorBees team with us today. That includes Bilal and Amir. All right. Okay. Assalamu alaikum, Ms. Asya. How are you? Glad to see you here with us today. Walaikum assalam. Walaikum assalam. Thank you very much for So this हम Skillshare quickly, event. thank you. So हम थोड़ा सा I would encourage the participants to maybe tell us. I can create a poll for that also कि आप में से कितने लोग हैं जो कि actually English अभी पढ़ा रहे हैं. So let me just send the poll while we start our session today. So Celta, how many? Let me create another poll. All right. Thank you, Binesh, for your response. So a few people are left. Acha, so before I jump right into the session, I wanted to spend some time about the significance of English language in the world of today. As you all know, this is the age of AI, and majority of the tools that we are seeing today, their language of implementation is English. आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ChatGPT, Gemini, Perplexity, Grok, other tools use किए होंगे. Is that correct? You can use your public chat to give a response. So ये poll मैंने actually थोड़ा सा publish कर दिया जो previous वाला था. And let's go and see. Yes, so all of you are already using ChatGPT and other AI tools, and as you know कि वहाँ तो English already use हो रही है काफी सारी, which means कि lot of us need to polish up on our written English skills, on our comprehension skills also कि अगर लिखी हुई चीज आ रही है, we should be able to comprehend and understand it. And if we want to get useful output from any AI tool, we have to be able to write our prompts in English. So ये base level की requirement जो है, this is the way this requirement is seen today is very different from the way it was seen maybe 5 years ago. तब शायद इतनी hard requirement नहीं होगी, लेकिन आज की डेट में definitely है. So एक तो generally speaking I see कि English की demand बढ़ जाएगी पाकिस्तान के अंदर. ठीक है? Think again for a moment. I'm saying कि English language instruction की demand बढ़ जाएगी. Okay? So if you take a moment to absorb that, the next question that should pop up in your head is कि अगर demand बढ़ रही है तो who are all the English teachers जिन्होंने उसको fulfill करना है? एक बात है ना, that's the next question that comes to mind. So वो सारे English teachers जो हैं वो आज की डेट में बहुत सारे लोग जो हैं वो exist कर सकते हैं कि yes, you know, I can do this and I can do that. And my question is, how will somebody distinguish themselves from the rest of the pack? अगर आप English पढ़ा रहे हैं और आपके साथ let's say there are 50 other candidates who English पढ़ा रहे हैं, how do you distinguish yourself? Any comments or any thoughts around that? Ma'am, I guess to get certifications in different English-related certificates to upskill. जी बिल्कुल बिल्कुल. So basically एक basic level की proficiency होती है, एक basic level की language की command होती है. You may have used apps like Duolingo. वो आपको लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट भी करके देती हैं और आपकी लैंग्वेज का करंट असेसमेंट लेवल जो है वो भी आपको बता देती हैं. द नेक्स्ट स्टेज इज के आपने अगर वो असेसमेंट लैंग्वेज असेसमेंट अपनी एक कर ली है और आपको पता है कि अच्छा यू नो आई एम करंटली स्टैंडिंग एट लेट्स से C1 और व्हाटएवर लेवल, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके लिए ये होता है कि आप कोई प्रोफेशनल टीचिंग सर्टिफिकेशन लें कि I am a professionally trained teacher who knows के
एडल्ट्स को इंग्लिश लैंग्वेज कैसे टीच करनी चाहिए। तो यहाँ पेडागोजी वाला एलिमेंट आ जाता है, यहाँ पे मटेरियल्स का जो है वो आ जाता है, एलिमेंट आ जाता है, राइट। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ थिंकिंग, एक फ्रेमवर्क आ गया, ठीक है, एक सर्टेन अप्रोच आ गई विच इज अ सर्टिफाइड अप्रोच। कैम्ब्रिज आपको ये वाली अप्रोच दे रहा है। So essentially, that is how you distinguish yourself from the rest of the people who are teaching English. They may be very good teachers. उन्होंने अपने experience से सीखा होगा. So CELTA is one such certification. We do have a few CELTA certified English teachers on TutorV's platform already. और in the past हुआ ये कि to share a bit more about CELTA कि ये है क्या. ICD is the Institute of Career Development. And this part I've taken from their website, that it's the only authorized teaching qualification center in Pakistan for Cambridge English. And they are the ones who run this CELTA, Delta, and TKT courses. So these are different courses. हमारी ICD के साथ जो है, जो communication between TutorBees and ICD हुई, the summary of that was that they are trying to do good things, promote proper English language instruction in Pakistan, and TutorBees is also trying to help teachers upskill and teach properly in the most professional manner. तो हमारे objectives जो हैं, they are very much aligned. हम दोनों इदारे, हम teachers के साथ काम कर रहे हैं. We want to do good work, and that's the only intersection that we have. So next step ये हुआ कि ICD presented to us कि अगर CELTA के लिए specifically only for CELTA, they said that if you want to recommend this to जी Shahab Saab, if you have a question, please let me know. I think this is turned on by mistake, Achaji. So going on to talk a little bit about CELTA. So this is one certification जिसके ऊपर ICD has extended an offer to our community. They said that if your English teachers are interested in doing the CELTA certification, they'll be happy to extend a discount. So CELTA की जो preparation है और CELTA की जो information है, that's available on the ICD presented to us कि अगर CELTA के लिए specifically only for CELTA, they said that if you want to recommend this to जी Shahab Saab, if you have a question, please let me know. I think this is turned on by mistake, Achaji. So going on to talk a little bit about CELTA. So this is one certification जिसके ऊपर ICD has extended an offer to our community. They said that if your English teachers are interested in doing the CELTA certification, they'll be happy to extend a discount. So CELTA की जो preparation है और CELTA की जो information है, that's available on their website. I will share my screen shortly to just help you review that information. So essentially it's a global recognition. We say global because this is offered by Cambridge. This is not designed by TutorBees. This is not designed by any local company. Cambridge की अपनी certification है. This has a practical training component. So I was told by ICD team that their trainer actually travels once a year from UK to Pakistan to deliver this in-person training. And this can be done in a short span of time. Usually this is scheduled in summer. तो टीचर्स को जिस वक्त थोड़ा सा ऑफ टाइम मिल रहा होता है समर में वेकेशंस के अंदर, तो ये लोग उस वक्त इसको प्लान करते हैं. माय अंडरस्टैंडिंग इज कि जून के अंदर इनकी एक सर्टिफिकेशन का राउंड प्लान्ड है. So the prerequisites to do this certification are listed on this page. Most of the institutions, they require adults because this is a certification which allows you and which enables you to work with adults. बच्चों के लिए ये आपको train नहीं करें. And then they require a good standard of education. ICD की अपनी requirements आप देखेंगे जाके तो वहाँ पे exactly वो उन्होंने शायद list भी किया हो कि अच्छा आपको कम से कम डिग्री आपकी बैचलर्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. So we'll find out shortly कि उनकी
लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स क्या है आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में अगर आपने अप्लाई करना है. And the third thing which they did share very openly that was कि English proficiency आपकी up to C1 level minimum होनी चाहिए. So अगर किसी ने adults को पढ़ाना है and they want to make a claim कि I am CELTA certified, जरूरी है कि उनकी अपनी written English तो ठीक हो और जरूरी है कि उनकी अपनी comprehension ठीक हो. And after that, you see, then they can work with other people to work on the verbal part, work on the spoken part, and so on. Because एक adult trainer के लिए it's extremely important that they have to come across as someone who is very proficient. So if you have any questions so far, please let me know. I will be switching my screen now, and I won't be able to see the chat messages when my screen is switched away. Somebody will have to read them for me. Okay, let me just. So let me know when you can see my screen. जी visible है, it's visible. Okay, sounds good. So icd.org.pk, this is the website जिसकी हमने अभी बात की. और इसके ऊपर जो है वो अगर आप About Us के section में चले जाते हैं, so that explains a little bit of history of the institution. ठीक हो गया? You can look at this website later on also. There's a mention of what certifications they offer. और अगर हम teaching qualifications की बात करें, there is a pre-CELTA, there is a CELTA, so I'm going to go into the CELTA program. So face-to-face is what we discussed with them. That's what I am recommending to our community because I think for certain programs, आप बिल्कुल अगर आप as a trainer, teacher trainer जो है या आप adult trainer आप अपनी training ले रहे हैं, so this should be more useful. So 16th June to 11th July इन्होंने अपनी कराची workshop रखी हुई है. Sorry, yeah. Lahore wali rakhi hui, and then there is one in Karachi and one in Islamabad. So you have all of this information here. इन्होंने admission process वगैरह दिया हुआ है, so you can go through all of these details. इसके अंदर so 600,000 जो इन्होंने अपनी course fee रखी हुई है वो 600,000 rupees है. इसके ऊपर they said कि tutor fees अगर अपने teachers को recommend कर रहा है, we will give them a 20% discount. That's the offering. तो उसका तरीका यही होगा कि when you reach out to their team, so ये candidates का prerequisite criteria आ गया. So anyone जिनका prior teaching experience बिल्कुल नहीं है, we would not recommend them to take up this qualification. This is not for those who are just kind of immediately starting their teaching career. फिर अपना takeaway ये है कि आप थोड़ा सा बेहतर use कर लेते हैं qualifications को if you have some prior experience, then you're able to relate more to what the instructor is telling you. ठीक हो गया जी. मेरा पर्पस यही था कि मैं आपको वेबसाइट का एक वॉक थ्रू करा दूं और प्रोसेस बता दूं. So essentially you can, again, this is a public website, you can visit in any time and go through the details. So one or two people from ICD team, they are engaged with us. हमारे थ्रू हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि if somebody decides to apply, तो हमारी टीम वेरिफिकेशन सिर्फ करी होगी कि yes, they're part of TutorBees community. हम उस वक्त आपका भी प्रोफाइल देख रहे होंगे. So I think that's pretty much it. तो I believe कुछ लोगों के questions थे they wanted to ask. Please go ahead. The floor is open for questions. Do we have any questions from anyone? Safiullah, Samiha, I have not seen you in our skill exchange programs earlier. कुछ अगर आप शेयर करना चाहें, कोई कमेंट, कोई बात पूछना चाहें, please go ahead.
आयशा, इसका ड्यूरेशन क्या है, ये जो कोर्स है weeks, सेल्टा का? तकरीबन 1 महीना, 4 weeks। 4 वीक्स हैं, तो इसके बाद क्या ट्रेनर है वो क्या उसकी एबिलिटी हो जाएगी टू कम्युनिकेट, वो उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाएगा एज अ ट्रेनर सेल्टा दे विल का बिकम डिग्री? दे विल बिकम सेल्टा सर्टिफाइड। उसका मतलब ये है कि एक्चुअली अगर तो अपने सारे जो कोर्स की असेसमेंट्स वगैरह हैं, जो सारी असाइनमेंट्स हैं वो कर लेते हैं, तो दे विल बी एबल टू मेक दैट क्लेम कि मैं सेल्टा सर्टिफाइड हूँ। तो इट सर्टनली, आई एम अस्यूमिंग, इसका मतलब है कि एक विजिबल डिफरेंस होगा उनकी टीचिंग स्किल के अंदर। टीचिंग स्किल के अंदर होगा? इंग्लिश टीचिंग के लिए है ये इंग्लिश टीचिंग, बेसिकली, जी बिल्कुल, इंग्लिश नॉट टीचिंग। फॉर? यानी अगर अच्छा आप, अच्छा, सेल्टा रियली स्टैंड्स फॉर, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ था ना टाइटल हाँ के हाँ, अंदर, सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट इन टीचिंग। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग टू एडल्ट्स। ठीक है, जो जो जैसे टेफल है ना, TEFL, वो टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज फॉरेन होता है, लैंग्वेज, ठीक है। हाँ जी। इसी तरह एक और इनकी सर्टिफिकेशन है। तो डिफरेंट लेवल्स हैं और डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं। सो ये मैम रिकमेंडेड है टेफल, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और ये एज ए क्वालिफिकेशन और भी कोई जो टीचर है करना चाहे उसको ये ऑफ बेनिफिट कोर्स, करेगा? आई थिंक डेफिनेटली यस, क्योंकि देखें हमारी जो इंस्ट्रक्शन होती है इन लॉट ऑफ स्कूल्स, वो होती इंग्लिश के अंदर है। तो अगर आपने बेसिकली, तो आपकी अपनी इंग्लिश भी पॉलिश अप हो रही है ना, बिकॉज C1 लेवल तो ये एज अ प्री रेक्विजिट मांग रहे हैं। तो मैं C1 का मतलब ये है कि आप अगर, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ टीचर फ्रॉम आवर कम्युनिटी दे गो हम्म, आउट टू ICD एंड दे से कि जी मैंने सेल्टा करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि ICD कहेगा कि अच्छा कम एंड डू इट। व्हाट हम्म दे विल से इज, ओके व्हाई डोंट यू कम एंड डू दिस इंग्लिश असेसमेंट फर्स्ट, ठीक है। हम्म हम्म। अच्छा आयशा, एक आउट ऑफ क्यूरोसिटी जी, एक क्वेश्चन मेरे यस, बड़ा दिमाग में आ रहा है कि जो जी, लैंग्वेज लर्निंग है, इसकी एबिलिटी जो या है वो हर इंसान की डिफरेंट है। इसीलिए तो या मतलब कुछ जल्दी सीख जाते हैं, कुछ को बहुत देर लगती है, कुछ सारी जिंदगी ही नहीं सीखते। तो हम्म मतलब हर एक का अपना एक तरीका है। तो हम्म ऐसा क्या होता है, जैसे सेल्टा आप कह रहे हैं, या लोग ऑफर करते हैं प्रोग्राम और कहते हैं कि आप सर्टिफाइड, आप इसमें हो जाएंगे, आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश हो जाएगी। ऐसा क्या होता है उनकी टीचिंग में कि वो सारे काइंड टाइप ऑफ लर्नर को एड्रेस करती है? कोई उनका तरीका ऐसा होता है कि सारे टाइप ऑफ लर्नर उसमें एड्रेस हो जाते हैं अच्छा, कि? देखिए, हाँ। सो मेरा ख्याल ये है कि ये जो ग्लोबल सर्टिफिकेशंस होती हैं ना, ये फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करती हैं, ये आपको टीचिंग टेक्निक्स देती हैं, ये हम्म आपको लैंग्वेज एनालिसिस सिखाती हैं। हम्म तो जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है, यानी आप, हमने ट्यूटर बेस के ऊपर ये एक्सपीरियंस किया है इन अ हम्म, सब्जेक्ट लाइक मैथ्स, कि जो एक तजुर्बाकार अच्छा उस्ताद होगा ना, वो एक कॉन्सेप्ट को 60 सेकंड्स में एक्सप्लेन कर देता है, कर देता ठीक है। है, यस। और जिस टीचर का उतनी एक्सपर्टीज नहीं है, या एक्सप्रेशन नहीं है, या टेक्निक नहीं है, या उसकी एग्जांपल अच्छी नहीं है, वो उसी चीज के ऊपर इवन आफ्टर 15 मिनट्स द स्टूडेंट इज नॉट क्लियर कि स्ट्रगल कर रहा होता है। हाँ, कॉन्सेप्ट सही समझ में नहीं आता स्टूडेंट को। ठीक। तो आई थिंक तो फंडामेंटल चीज है दैट इज एक्चुअली दिस लैंग्वेज एनालिसिस एंड द टीचिंग मेथोडोलॉजी पार्ट, जिसकी वजह से टीचिंग की अपनी स्किल बेहतर होती है। अच्छा, क्योंकि ये मुझे बड़ा एक सरप्राइजिंग सी बात लगती है कि अच्छा, एक जगह पे जाकर आप सारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर जो हैं वो वहाँ पे जाकर हम्म सीख सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स एड्रेस हो सकते हैं, उसका वो पे करते हैं, है ना? जी, दोनों बातें हैं। देखिए, टीचिंग स्किल बेहतर होना इज वन एस्पेक्ट टू दिस सर्टिफिकेशन, और हम्म, दूसरी चीज, उस टैग की भी तो अपनी वैल्यू है ना। इफ फॉर वो बेहतर। एग्जांपल हमारे यहाँ लाहौर के अंदर हम कहते हैं कि जी अच्छा, कोई जो है ना, somebody studying in lungs, let's say, हम्म और कोई और कराची वाले हैं तो वो कहेंगे अच्छा, आगा खान में कोई पढ़ रहा है बच्चा, राइट।
तो ये जो हमारा लेबल्स होते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस के नाम होते हैं, इनसे जो डिग्री ली हुई होती है उनकी अपनी एक वैल्यू होती है। तो the other reason to do the certification is कि आप एक्चुअली वो लेबल या वो वैल्यू या वो टैग भी अपने नाम के साथ आप एसोसिएट करते हैं। ठीक है, थैंक यू। और थोड़ी सी आई थिंक ये एक्सपीरियंशियल भी है ना, जो मैं इन पर्सन कह रही हूँ, ये थोड़ी सी एक्सपीरियंशियल भी है, तो यू गेट फीडबैक देयर एंड देन ऑल्सो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ ना, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ वहाँ पे। तो क्या ये जो सर्टिफिकेट है उन टीचर्स के लिए भी है जो कि मतलब फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स पढ़ाते हो? मैं ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ। वहाँ पे ज़्यादा ओ लेवल ए लेवल के स्टूडेंट होते हैं, ज़्यादा फॉरेन होते हैं अक्सर। तो मैं चाहता हूँ कि उसके लिए मेरी जो इंग्लिश को इम्प्रूव हो जाए, तो क्या इसके लिए मुझे कोई फ़ायदा देगा या सिर्फ इंग्लिश टीचर्स के लिए ही है? थैंक यू। लेकिन प्राइमरीली तो दिस इज एन इंग्लिश सर्टिफिकेशन प्राइमरीली, तो आई वुड इनकरेज के इंग्लिश जो लोग पढ़ा रहे हैं सिर्फ वो इसको कंसिडर करें। इट इज एक्सपेंसिव ऑल्सो। फायदा है, डेफिनेटली है, बिकॉज आई हैव सीन वेरी एक्सपीरियंस टीचर्स ऑल्सो ऑप्ट फॉर जो इनकी दूसरी सर्टिफिकेशंस होती हैं, टेफल वगैरह है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज फॉर एग्जांपल, तो वो लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन के ऊपर ही फोकस करेंगे। अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं ना, आपको कंसिडर करना चाहिए जनरल लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट, जिसके अंदर ये जो ऐप मैंने आपको बताई है डुओलिंगो, बिलाल हैज पॉइंटेड इट आउट, इट्स अ मोबाइल ऐप, इट इज फ्री, आपको डेली बेसिस के ऊपर, एंड दिस इज लाइक अ वर्ल्ड वाइड स्टार, ये बहुत अच्छी ऐप है डुओलिंगो लैंग्वेज लर्निंग अच्छा, के लिए। तो अगर आपने अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, बिकॉज यू आर टीचिंग लेट्स से मैथमेटिक्स, या लेट्स से आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, कोई सा और साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो आप डुओलिंगो का रेगुलर इस्तेमाल करें, वो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। Does that answer your question, जी? मैम ये मिस बीनिश का पब्लिक चैट में my concern is fee, अच्छा जी, which is जी very high वो for 1 month. that is correct, that the fee is indeed very high, and I think this is explainable because if they're saying that the trainer is going to come travel from abroad, so that's their fee structure, so that is true. I mean, this is beyond our control, and the only good thing is कि अच्छा for tutor B's applicants, ये 20% कम हो जाएगी। And I think we mentioned it very clearly in the communication that went out. Actually, tutor B's has no financial benefit with these recommendations. We are not an affiliate as such for ICD. We don't get anything out of these recommendations other than the fact that yes, those teachers who want to improve, उनका फायदा हो जाएगा, उनके थोड़े से, they'll have to pay less fee. तो कोई और क्वेश्चन है जी किसी का? I'll be happy to answer. People get very good jobs वैसे, मतलब that's something जो इन लोगों ने हमें बताया भी था, अपनी जब प्रेजेंटेशन दे रहे थे, जाहिर है वो तो they're trying कि इस वक्त they should kind of attract more people to do CELTA certifications. But about a year or two, I had this one aspiring tutor. She spoke very well, and she mentioned that she was doing CELTA certification. तो उन्होंने मतलब उसके prerequisites भी complete किए, and she spent time doing that certification. She was able to secure a good position. जो लोग certified होते हैं with languages, as I said, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि पाकिस्तान में ये डिमांड बढ़ेगी in the years to come, because English is becoming more and more important because of technology. Primarily technology is driving this change. हमारे जितने tools आ रहे हैं वो सब के सब English के अंदर आ रहे हैं, तो उनकी
अंदर रिटन करना, देन उनको समझना. देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू हैव टू स्पीक ऑल्सो. वॉइस वाले टूल्स अगर आज आपको बहुत ज्यादा नहीं नजर आ रहे हैं तो आई थिंक देर जस्ट अराउंड द कॉर्नर, वो भी ज्यादा हो जाएंगे अगले आने वाले सालों में. और उनकी वजह से जो इम्पैक्ट आएगा वो यही आएगा, मोर एंड मोर पीपल वुड वांट कि अच्छा आई शुड लर्न इंग्लिश. तो वी हैव क्वाइट अ फ्यू पीपल टुडे. किसी का कोई और क्वेश्चन कमेंट हो तो प्लीज बताइए. आप सब लोग क्या पढ़ाते हैं, थोड़ा सा अगर गिव अस सम सेंस ऑफ आवर ऑडियंस. Ma'am, should I create a poll for that? जी प्लीज प्लीज. Okay. Everyone, I've created a poll. Please write down your subjects. Thank you. जी बिनेश, प्लीज गो अहेड. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. So good to have you here with us today. थैंक यू मैम. मैं जस्ट ऐड करना चाहूँगी कि आज से 10 साल पहले मैंने यहाँ के स्कूल में एज असिस्टेंट टीचर ज्वाइन किया था, और तब मैं फ्रेशली ग्रेजुएट थी और बहुत ज़्यादा वो एनर्जेटिक होता है बंदा कुछ लर्न करने के लिए. देन आई आस्क्ड स्कूल कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं एक अच्छी टीचर बन सकूं. So they recommended me this course. At that time it was very expensive. It was 10,000 dirham. और उसके बाद कुछ मेरे मसले मसाला से हुए कि मैं ऑफ हो गई इस फील्ड से. तो अभी मैं सोच रही हूँ कि आफ्टर 10 years still it has worth doing, but जी. फीस बहुत ज्यादा. देखिए, if you are a professional person, यानी we have seen teachers who जिनकी स्किल है ना, they are able to charge a very high fee because in 1 hour, 1 घंटा अगर वो चार्ज करें ना तो 1 घंटे में they will cover a lot of ground. ठीक है. तो आप इसको इस तरह विजुलाइज करें कि हमारे पास एक मैथ्स के टीचर थे एंड विद इन 1 hour ही कुड कवर सो मच कि अगर उनकी फी हाई भी थी ना तो वो एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेस दैट द स्टूडेंट वाज मेकिंग वो हाई नहीं थी. अगर स्टूडेंट ने 10 चीजें पढ़नी है, द टीचर इज एबल टू एफिशिएंटली नाइसली कम्युनिकेट लेट्स से 5 ऑफ दोस थिंग्स इन 1 hour. बिल्कुल. तो पर ये एक मैम बेहतर ऑप्शन होती है. या मैं एक्चुअली मैं इसमें नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है और क्या मतलब उनका क्या सिलेबस है. बट देखें, टीचिंग इज वेरी अंडर बट वी से कि बहुत ही उसको इतना कवर नहीं किया जाता ना कि इतना महंगा कोर्स करके फिर इतनी स्किल लेके फिर आपने टीचिंग करनी है, फिर उतना ही आपको मेहनत करनी है. तो वो उस तरह से सोचें तो फिर वो बड़ा डिसहार्टनिंग होता है कि आपको खुद ही पता है कि टीचिंग में इतना पैसा नहीं है. टीचिंग में मोस्टली लोग वही अच्छे टीचर हैं जो पैशनेट हैं या जो दे आर नॉट वर्क फॉर मनी, दे वर्क फॉर इम्पैक्ट, कि कुछ
डिफरेंस क्रिएट कर जाएं। तो उस अच्छा, हिसाब से that's देखो one तो thing that we are trying to change. सॉरी, मैं आपकी बात मुकम्मल करें पहले, आप जी बात नहीं मुकम्मल बता, बोलिए, आप बोले। I was saying that that's one thing that we are trying to change and that we are trying to create awareness about कि जब तक अच्छे लोग टीचिंग प्रोफेशन में नहीं आएंगे तो we can't really change our country. ठीक बात है ना? तो बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये कि I have observed कि people who teach well, they're actually able to make very good money also. बहुत थोड़े लोग हैं ऐसे, but then they're able to make very good money. तो लेकिन ज्यादा बात इसमें ये होती है कि लोग पहले अश्योरेंस चाहते हैं और उसके बाद मेहनत करना चाहते हैं। तो जो ऑर्डर मैंने ऑब्जर्व किया इवन ऑन आवर प्लेटफॉर्म, यानी देयर इज समवन जिनकी हमने विथड्रॉल रिक्वेस्ट 180,000 रुपीस की प्रोसेस की 1 महीने के अंदर, एंड दिस पर्सन, यू कांट इमेजिन, जो इनकी पहली ट्यूशन की कमिटमेंट थी, वी एट द प्लेटफॉर्म वर थिंकिंग के 1200 रुपए महीने में कौन पढ़ाता है, एंड शी वाज टीचिंग दैट स्टूडेंट एवरी सिंगल डे। बिल्कुल लेकिन वही उनकी ना, फिर बात इतनी वही आ जाती पैशन की, कमिटमेंट की। बिल्कुल पैशन से ज्यादा आई थिंक इट्स द स्किल आल्सो, बिकॉज एनी पर्सन जिसने अपनी रिसोर्स मटेरियल अपने पास रेडी किया है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रेडी किया है, ठीक है, और जी जी उनके लिए डिसाइडिंग फैक्टर लेट्स से इनिशियली मनी नहीं है, जब तक वो उस रेडी स्टेट में आ नहीं जाते जिसके पास आप कहते हैं अच्छा यू नो आई गॉट एवरीथिंग, आई विल नॉट नीड टू स्पेंड एनी टाइम प्रिपेयरिंग फॉर द क्लास नाउ, बिकॉज ऑल ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट वाज डन वे बिफोर, ठीक है। तो उन्होंने 1 साल तो उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट ये की है ना, अपना सारा कुछ बनाया है, मटेरियल दैट शी रिक्वायर्ड, पढ़ाती गई जिस रेट पे मिला पढ़ाती गई, और आज की डेट के अंदर तो दिस इज व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, दिस इज एब्सोल्युटली स्टनिंग, and she's not the only one. We have noticed the same pattern with other teachers also, because they start small but वो अपना collateral बनाते जाते हैं, because उसका फायदा उनको ये होता है कि जो नेक्स्ट ट्यूशंस होती है ना, उसमें वो एफिशिएंसी नजर आ रही होती है कि अच्छा वर्कशीट्स रेडी हैं, ठक 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 करके देर एबल टू गिव असाइनमेंट्स टू देयर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस वर्क, असेसमेंट्स हो रही हैं, तो प्रेपरेशन स्टूडेंट की भी बहुत अच्छी होती है टाइम के टाइम, और टीचर का टाइम जो है ओवर 1 ईयर वो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज तरीके से यूज हो रहा होता है। तो वो अच्छी जी जी टीचिंग बिल्कुल, दैट प्रैक्टिसेस आई जो नो उस हैं और एक्सपीरियंस पे, टीचर जो की मैंने अपनी जैसा स्किल, पढ़ाया होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज़ हमने की होती है उसको दोबारा करना बहुत इजी होता है, और बल्कि उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हम ला रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल, जी आई एग्री। जी। तो थैंक अगेन यू। आई मीन हमारी साइड से तो दिस इज जस्ट वन ऑप्शन, इफ पीपल थिंक कि जी दिस इज टू एक्सपेंसिव एंड दे डोंट वांट टू अवेल इट, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। मतलब अगेन जो एक अच्छी चीज थी, वी थॉट वी शुड शेयर विद द कम्युनिटी, एंड certainly you know that was the intent. Do we have any other questions? If not, I have one concluding remark before we end this session. सो मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि हमने अपनी जो स्किल एक्सचेंज प्रोग्राम है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी को हमने रिवाइज डाउनवर्ड्स किया है। इन पैरेलल टू दिस सेशन वी हैव स्टार्टेड अनदर पॉडकास्ट सीरीज, जिसके अंदर वी आर डूइंग one-on-one podcasts between Bilal Haider साहब and a teacher. सो द पॉइंट इज के वो स्पॉटलाइट जो कि टीचर्स के ऊपर होनी चाहिए थी हमारी कंट्री के अंदर, वी फाइंड कि नो वन हैज दैट स्पॉटलाइट ऑन द टीचर्स। तो वी वांट टू गिव देम अ वॉइस, वी वांट टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म, ताकि वो अपनी जर्नी, अपना एक्सपीरियंस, whatever message they have for the community, they should be able to share all of that. So we have done the initial few sessions. अगर आप लोगों में से भी कोई interested होगा तो please get in touch with admin. We should be able to plan it.
Our focus is on teachers who are doing a great job at this. Ji Sanya, please go ahead. You've raised your hand. If you want to say something, please go ahead, join the conversation. Ma'am, Sania's mic is not working. I see. So maybe she can type something if she has a question. Ma'am, she can't hear actually, nor she Oh, can speak. okay. Amir is Okay. calling. All right. So we're at the end of the session, Bilal. I mean, if these people can just join our WhatsApp group, that would be great. We can share the recording of this session on the WhatsApp group also. हम ये कर लेते हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, ma'am, about the WhatsApp group, they can join through their profile on their dashboard. If I Right, share my right. screen, let me just give me a moment. Let me log into my Twitter account. Okay, sure. Thank you, ma'am. Just give me a moment. ठीक है जी. So Bilal will just kind of guide everyone ke how can you join the WhatsApp group. We will share the edited recording of today's session on that group. Hopefully अगर किसी ने join करना होगा वहाँ से वो कर सकते हैं. If someone wants to be our guest on the Learning Lens, drop us a line. जो हमारे episodes on air गए हैं, please watch those, give us feedback. You can raise questions on the YouTube channel also. So our guests are very open to receiving questions and continuing the dialogue. Yes, ma'am. So, everyone, I've just logged into my Twitter account, and this is the dashboard of my Twitter account, and you can see this green button to join the WhatsApp group. So you just need to click it, and you will go to the group. You will click on join, Okay. and you will be, yeah. Yes, ma'am. Thank you, Bilal. Thank you very much. I want to thank everyone who has joined the session today. आपका question हो कोई तो please go ahead. We can just end the session now, Bilal. Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you, everyone. Allah Hafiz. Okay. Khalafis.